Specific Relief Act 1963. This is the Act number 47. Okay. And President given assent in the date of the 13th December 1963. The preamble से पहले हम इसके टोटल सेक्शंस और टोटल चैप्टर देखेंगे. ठीक है. It have the total 8 chapters and total 444 sections. Okay, 2 sections are repealed and lots of sections are changed. Example, that is the section 14 is changed, for section first is changed, section 20 is changed, and many more are changed. Section 10 is also changed. Okay, so let's read it out. That is the preamble, an act to define and amend the law relating to the certain kind of a specific relief. Okay, be enacted by the Parliament or in the 14th year of Republic of India as follows. Okay, Part 1, Preliminary. Section 1, short title, extent and commencement. This act may be called the Specific Relief Act 1963. Subsection 2, it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. That thing is repealed in the new Barrack. Except the state of Jammu and Kashmir and repealed now. Okay, now this is the extent to the whole of India. That thing is applied. Next is the third point, that is the it shall came into force on the date of the 1st March 1964 as a central government may by notification in the official gazette appoint. Next is the definition clause. In this act, unless the contest otherwise require, A said that the obligation includes every duty which is enforceable by law. B said the settlement means an instrument other than the will, codicil as defined by the Indian Succession Act 1925, 35 of 1925 Act, and whereby the destination or devolution of the successive interest, movable or immovable property is disposed of or in the agreed to be disposed of. So these are the two definition and one section. First section is said that this act, इस act का नाम है Specific Relief Act 1963. ठीक है, ये अप्लाई होगा पूरी इंडिया में. जम्मू एंड कश्मीर ये थिंग रिपील हो चुकी है. नेक्स्ट इज द कमेंसमेंट डेट बता रहा है 1 मार्च 1963. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन डाल के, मतलब नोटिफिकेशन डाल के और भी जो भी अमेंडमेंट है वो भी कर सकती है. नेक्स्ट थिंग इज़ द डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें ABCDE तक दिए हुए हैं डेफिनेशन. तो 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी. तो पहली डेफिनेशन ऑब्लिगेशन बोल रही है. ऑब्लिगेशन ये बोल रही है कि वो पूरी ड्यूटीज़ जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हैं वो ऑब्लिगेशंस होंगे. बी बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेटलमेंट होंगे, लेकिन विल और कॉडिसिल जो है वो नहीं होगा. ठीक है, ये चीज़ जो है वो डिफ़ाइन की गई है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में. ठीक है, जहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कैसे डिस्पोज ऑफ की जाएगी उसके लिए बताया गया है. ठीक है, तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें सिर्फ याद रखना है हमको कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट सेटलमेंट होंगे, लेकिन सिर्फ विल और कोडिसिल को छोड़कर. ठीक है, इसमें उतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ विल और कोडिसिल याद रखना है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ ट्रस्ट. Trust have the same meaning as in the section 3 of the Indian Trust Act 1882, Act number 2 of 1882, and included an obligation in the nature of the trust within the meaning of the chapter 9 of that act. Okay,
Next is a deed. Trustee includes every person holding property in the trust, and E, all other words and expression used herein but not defined and defined in the Indian Contract Act 1872, Act number 9, 1872 have the meaning respectively assigned to them in that act. Okay. तो ई डेफिनेशन ये बोल रहा है इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है उसका वही मीनिंग समझा जाएगा जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बताया गया है, जिसका एक्ट नंबर 2 और 1882 है। ठीक है, तो उसके जो भी ऑब्लिगेशन उधर पे दिए गए हैं ट्रस्ट के, वो सारे के सारे इस चैप्टर में भी, या पूरे के पूरे जो भी वहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी विद इन द मीनिंग ऑफ द चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट, मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट का बता रहा है कि वही मीनिंग लिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द ट्रस्टी। ट्रस्टी में इंक्लूड किया गया है कि वो पर्सन जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एज अ ट्रस्ट। ठीक है, ई बोलती है डेफिनेशन वो सारे वर्ड्स, वो सारे एक्सप्रेशंस जो हैं जो डिफाइन यहाँ नहीं किए गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो चीज़ें डिफाइन नहीं की गई हैं, वो सारी की सारी हमें पढ़नी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसका नंबर है 9। वहाँ से हम वो मीनिंग्स ले लेंगे और वो उन मीनिंग्स का वही मतलब समझा जाएगा इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अ सेविंग क्लॉज। कौन सी चीज़ों को सेव कर रहा है ये एक्ट? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयरइन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, ए एंड बी पॉइंट दिया है, इस अप्लाई नहीं होगा टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ इन अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस which he may have under any contract and to affect the operation of the Indian Registration Act 1908 on documents। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ों पे ये एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा और उधर पे मतलब उन एक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात लिखी है कि हाँ आपको परफॉर्मेंस करवाना है या पर्टिकुलर डिस्प्यूट में आपको ये रेजोल्यूशन लेना है, ये सॉल्यूशन अप्लाई करना है, तो फिर उस हिसाब से चलेगा, मींस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर कोई आपने रूल्स रेगुलेशंस कुछ पॉइंट एडिट करवाए हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर वो इफेक्टिव होंगे रेदर देन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फिर आप ये नहीं बोल सकते उनके अगेंस्ट में जाके कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए या स्पेसिफिक रिलीफ में जो भी आपको राइट्स लायबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलीफ ग्रांट की जाए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रवेल होगा, ना कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रवेल होगा। ये एक्ट जो हैं वो सेव रहेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 4, a specific relief to be granted only for the enforcing the individual civil right and not for enforcing the penal laws. Specific relief can be granted only for the purpose of the enforcing the individual civil right, not for the brief purpose of enforcing a penal laws, meaning thereby कि ये जो specific relief act है इसमें relief जो है वो इंडिविजुअल सिविल राइट्स को दिया जाएगा, सिविल राइट्स पे सिर्फ अप्लाई होगा, पीनल लॉस पे नहीं। दैट मीन्स अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, कोई मर्डर करते हैं या कोई मर्डर से रिलेटेड या कुछ भी क्रिमिनल में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेके या आपकी राइट्स ड्यूटीज़ या आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं उस चीज़ को लेके, इलीगल एक्ट इलीगल ओमिशंस को लेके आप इस एक्ट में अपना कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स पे अप्लाई होगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ों को छोड़कर। अगर उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें आपने कर दी हैं तो फिर वो चीज़ें अप्लाई होंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 1
which we completed chapter, or we call this also the part 1. That is the part 1, okay, which is constituted in the section 1 to 4. Okay, bye bye.